अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक दर्जे पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ के कार्यकाल का आज आखिरी दिन है। आज उन्होंने इस केस में अहम फैसला सुनाया। उन्होंने खुद फैसला पढ़ा, जिसके मुताबिक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अल्पसंख्यक दर्जा फिलहाल बरकरार रहेगा। वहीं इस केस पर आगे सुप्रीम कोर्ट की दूसरी बेंच सुनवाई करेगी। इसका मतलब यह है कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल नहीं किया है कि एएमयू अल्पसंख्यक संस्थान है या नहीं। केस में 4-3 बहुमत से फैसला लिया गया है। जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एस.सी. शर्मा ने असहमति जताई। बाकी 4 सहमत हैं, जिसमें चीफ जस्टिस के अलावा न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, जस्टिस जे.बी. पारदीवाला, मनोज मिश्रा शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केस में अजीज बादशाह फैसले को पलट दिया। वहीं केस में जो भी फैसला आए उसका असर जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी पर भी पड़ेगा। फैसला आते ही 60 साल से चल रहा विवाद भी थम गया, क्योंकि यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे पर साल 1968 से ही विवाद चल रहा है। आज तक कई सुनवाइयां हो चुकी हैं। फैसला पढ़ते हुए सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि किसी शैक्षणिक संस्थान को केवल इसलिए अल्पसंख्यक दर्जा देने से इनकार नहीं किया जा सकता कि इसकी स्थापना संसदीय कानून द्वारा की गई है। ऐसी स्थापना से जुड़े विभिन्न कारकों और अन्य पहलुओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए। कोई भी धार्मिक समुदाय किसी भी संस्था की स्थापना कर सकता है, लेकिन उसका संचालन नहीं कर सकता। संविधान के अनुच्छेद 30A के तहत किसी संस्था को अल्पसंख्यक का दर्जा देने के लिए मानदंड क्या है, सुप्रीम कोर्ट अच्छे से जानता है। अगर इसके प्रावधानों को संविधान लागू होने से पहले स्थापित संस्थाओं पर लागू किया जाएगा और संविधान लागू होने के बाद संस्थाओं पर लागू नहीं किया जाएगा तो अनुच्छेद 30 कमजोर हो जाएगा। Aligarh Muslim University was established by minority, that was and administered by minority. That's what was contended, and that has been the case of AMU since beginning. 1967 judgment had stated that if Parliament has passed a legislation, then the word established will be treated as if it has been established by Parliament and not by minority. That view has been overruled by the 4 judges, in fact 5 judges. Now, in terms of this judgment, the regular bench will decide the matter, and we'll see. Also, one important thing is that now regular bench will hear this matter, and there will be a criteria thing also about the. See, the main issue is whether it was established by minority or it has been administered by minority. If it is established by minority, then the matter ends. Obviously, in this process, the court will examine whether it has been administered or not. So now this issue will have to be argued before the regular bench, and regular bench will decide this matter. Just now, a constitution bench of 7 judges have pronounced their verdict on the issue of the correctness of an earlier judgment, Aziz Basha, which is a judgment from the 1960s, and the consequent minority status of the Aligarh Muslim University. There were 2 broad views of the court. One was the majority, which was authored by the Chief Justice on his behalf and the 3 other honorable judges, and there were 3 dissents. The majority, in effect, that is the court 4:3, has held that the judgment of the 1960s in Aziz Basha, which held that Aligarh Muslim University is not a minority institution, was incorrect, and it has been overruled. Thereafter, it has also set the parameters, or what we legally call indicia, for what is required for an institution to be established by a minority to meet that constitutional test under Article 30. That test basically includes everything in terms of how the institution was established, its history, the community which was involved, and various other aspects. The actual issue of whether AMU is a minority institution will be determined by a smaller bench. But given the nature of the test, which has been espoused by the majority today, it is quite likely that AMU as an institution as it exists is going to meet all those requirements which have been laid down in the test by the court. And the 1967 judgment has been overruled. आज सुप्रीम कोर्ट की 7 जजेस की खंडपीठ ने एक डिसीजन दिया है, जिसमें मेनली 2 इश्यूज थे। एक की जो
1964 का डिसीजन था सुप्रीम कोर्ट का, 67 का जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था अजीज बादशाह में, जिसमें एमयू को नॉन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन करार गया था, वो जजमेंट गलत है और उसे एक्सप्रेसली बाय मेजॉरिटी ऑफ 4 जजेस टुडे वो ओवर रूल कर दिया गया है। और इंस्टीट्यूशन को माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन होने के लिए हमारे आर्टिकल 30, हमारे संविधान के आर्टिकल 30 के अंदर क्या टेस्ट है, वो टेस्ट भी लेट डाउन कर दिया गया है। और क्या एमयू एक्चुअली माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, उसके लिए एक छोटी जजेस की खंडपीठ अब ये इशू डिसाइड करेगी। लेकिन जिस तरह का टेस्ट दिया गया है वो बहुत एक्सपेंसिव टेस्ट है, ब्रॉड टेस्ट है, तो चांसेस काफी हाई हैं कि जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है वो इस टेस्ट को मीट करेगी जब भी वो बहस होगी, बट वो ऑब्वियसली डिसीजन सब्सिक्वेंट है। द क्राइटेरिया इज इफेक्टिवली द हिस्ट्री। यहाँ आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय पीठ इलाहाबाद हाई कोर्ट के 2006 के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। हाई कोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा देने से इनकार किया था। साल 2019 में केस 7 जजों की पीठ को सौंप दिया गया, जिसका नेतृत्व चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ कर रहे थे। इस पीठ ने अनुच्छेद 30 के प्रावधानों को ध्यान में रखकर केस की सुनवाई की और फैसला सुरक्षित रखा। 8 दिन लगातार सुनवाई के बाद आज फैसला सुनाया गया। इससे पहले साल 1968 में एस अजीज पाशा बनाम भारत संघ केस में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था। उस समय यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय बताया गया था। 1981 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट 1920 में संशोधन किया गया और इसका अल्पसंख्यक दर्जा बहाल किया गया। इस बहाली को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया और मामला कोर्ट पहुंचा। हर बड़ी खबर का असली एड्रेस है खबरनामा, इसलिए हर न्यूज अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें और फॉलो करें खबरनामा। और इस वीडियो के लाइक बटन को प्रेस कर इस वीडियो पर कमेंट के जरिए अपनी राय देना ना भूलें।